लाइव डिवाइड अनुवाद करने निर्देश देते जो गिरिजाशंकर कहले पट्टनायक कहले आपण इंग्राजी लिखिले विश्व प्रमुखित हे से उत्तर देले मु मो मातृभाषार साहित्य को समृद्धित करने लिखुଛି से ओडिया माटीर अन्यतम बरपुत्र प्रिय चित्त भाई प्रोफेसर चित्तरंजन दास का जन्मदिन पालन करने आम समस्ते आज एकत्रित हो आपण समस्त मोर हार्दिक स्वागत। विश्वनाथ बेहरा आम पूर्वतन सभापति राउरकेला स्टील प्लांटर वरिष्ठ जनरल मैनेजर अवसर प्राप्त आम मुख्य अतिथि भाई पाई से आसन ग्रहण करने अनुरोध कर विश्वनाथ बेहरा आमर वक्ता बहुत परिचित बहुत स्नेह प्रतिपादित किंतु आउ जन वक्ता आसुच्च राशि आसन ग्रहण कर प्रथम आम चित्त भाई फटे पुष्प अर्पण करवा आउ जन जन कर अल्प कई जन जा पुष्प अर्पण कलापर कार्यक्रम आरंभ जदि तोर डाक सुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे जदि तोर डाक सुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे तबे एकला चलो एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे जदि तोर डाक सुने केउ ना आसे तबे एकला चलो रे যদি সবাই থাকে
তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও বাবা সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায় যদি গহন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায় তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাথা চরণ করে একলা দলরি তুই রক্ত মাথা চরণ করে একলা দলরি যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি আলো না ধরে ওরে 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 আমার রবের বন্ধন চালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে আমার বুকের বন্ধন চালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তোমার দেখা সেকার কিনবে আমার কাছে ধারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি দিয়ে যাবি আমারে বুঝিও রাখবো ভালো বুঝি ওই নবীর আলো আভাসে শিখা দিল গগন পারে সমুদ্রের এই পথ তোমার কিরণ পৌঁছবে না মোর দুয়ারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি দিয়ে যাবি আমারে চেহারায় নিমি সারা বসে রয়ে রাত্র ভাতের পথের ধারে তোমারই দেখা পেলে সকাল ফেলে উঠতে আলোক পারাবারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি আমারে ଚିତ୍ତବାଇଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟତମ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ବିଶ୍ୱଭାରତୀର ଜଣେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷଠାରୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଶାନ୍ତିନିକେତନ ହିଁ ପରମ ଆଗ୍ରହରେ ଚିତ୍ତବାଇଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଦରରେ ଉର୍ବର ଭୂମିଟିଏ ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହାର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ସୁରୁପ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପ୍ରଥମେ ଓ ଶେଷରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତର ସମୂହ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ବୋଲା ହୁଏ। ସେ 87 ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ খুব সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইপাରୁଥିଲେ এবং যে কিছু ভুল কলা তাকে প্রকৃত সুর শিখাই দেଉଥିଲେ। 5 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ଆପଣ କିପରି ଏତେ ଗୀତ ଏତେ ନିନ୍ଦା ମନେ ରଖିଛନ୍ତି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଗୀତ ସହ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହେଇଯାଏ, ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଏ। ଭାବକୁ ଆତ୍ମସ୍ଥ କଲେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ମନେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବକ୍ତୃତା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଅଧ୍ୟାପକ ନବେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ବୋଧହୁଏ ନିଷ୍ପ୍ରୟୋଜନ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ଯେ ଆଜି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ আমাদের ଶାନ୍ତିନିକେତନ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ପିଲାଏ ଶିଖି କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ସବୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଆଲମେଟର ସଙ୍ଗ୍ ଥାଏ। ଆଲମେଟର ସଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୀତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହୁଏ ସେ ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। ଆମର ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତ আমাদের ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଏହା ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ, ଏହା କିନ୍ତୁ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲେଖା ଏବଂ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ। ପ୍ରିୟ ଅନୁଜ ନିଜେ ଶାନ୍ତିନିକେତନର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କର ସ୍ନେହ
संपर्क में कहना प्रोफेसर नवीन दास जो गेट पाक पहुँचती कान में बाजुला एकला चलरे गीतटी एकला चलरे गीतटी जो शांतिनिकेतन ऑडिटोरियम रे गान करा जाए से देह एवं रम टांग कर उठे जे को दर्शन को चिंता भावना को नहीं रवीन्द्रनाथ एभली एक गीतर परिकल्पना करता तेरे से नालीमाटी घर चित्तरंजन दास दीर्घ समय अतिबाहित कर तार अन्य एक आकर्षण केन्द्रबिंदु थिला जे बृहत पाठागार विश्वर अन्य पाठागार बा लाइब्रेरी भली ये विराट लाइब्रेरी प्रति विभाग लाइब्रेरी अच्छे से बही को भल पाइबा उत्तर दे चित्तरंजन दास बोध हुए शांतिनिकेतन को भल पाइबा एवं से सृजन प्रक्रियार स्फुरण घटला मन हुए कारण चमत्कार ग्रंथ विशेषकर स्पिनोजा जो गवेषणात्मक ग्रंथ से लिखिं ताही हूँ सेठिकार प्रस्तुति और परवर्ती समय भागवत गीता बलराम दांडी रामायण चर्चा अनेक पुस्तक शांतिनिकेतन द्वारा प्रकाशित हो परवर्ती समय से जो प्रश्नटे रोचे कहीं आम गीत भाई भल पाइबा कहीं आम चित्तरंजन दास कौन गोटे लेखा पढ़े शिहरित होगा मुकुलित होगा कहीं कारण प्रत्येक रचना अति स्पष्ट भाव आम लक्ष्य करूँ जे मनीष प्रत्यय निर्माण मनीष प्रत्यय निर्माण अर्थ हूँ जे यही सभ्यतार आदिम काल आज पर्यंत मनीषर क्रमिक परिवर्तन इतिहास आम जो मनीषर स्वरूप को उपलब्धि देखू से कौ कौ मनीष मैंने अच्छा कार्य से विचार बोध से समाज प्रति से दृष्टिभंगी मनीष प्रति दृष्टिभंगी किभली भाव में रही से तन्न तन्न कर पर्यवेक्षण कर प्रत्येक रचना तेना आम एमती गोटे प्रबंध पाइबा ना एमती गोटे पुस्तक पाइबा ना जो गोटे मनीष चित्र से न आंकी तेणु अनेक समय प्रश्न उठे जे चित्तरंजन दास जड़े प्राबंधिक जड़े अनुवादक जड़े परिव्राजक जड़े सामाजिक मनीष जड़े दार्शनिक यही अनेक कथा आसे तेरे आम यू को एकत्रित कर चित्तरंजन दास को भेटू से से पूर्णांग मनीष भाव में आम आगे अवतीर्ण हो तेणु चित्तरंजन दास कौन गोटे निर्दिष्ट धर्मगुड़ा शिकार होना समस्ते कहते जे से अरविंद सीमा से अरविंद भक्त ये जो भक्त शब्द से बारंबार तात्सल्य कर कौन भक्त नुह तो क्या भक्त हवाई प्ररोचना दे तेरे सामग्रिकता चेतनार समन्वय किभली भाव भितर विकसित विकास लाभ कर जो अभिव्यक्ति गुड़िक पुस्तक प्रकाशित होती आम सहज जानी 1985 मसीहा ठार 1988 पर्यंत कल्चरल एकाडेमी जो नवपत्र रही से प्राय 11टी प्रबंध रचना कर प्रबंध गुड़िक हूँ खूब शक्तिशाली एवं जहाँ भर आम मनीषर तथ्य निरूपण पाई आम लक्ष्य कर मनीषर तथ्य निरूपण कर चित्तरंजन दास ये जो प्रबंध गुड़िक रही हूँ अस्तित्ववादी मन और जीवन दृष्टि कलात्मक जीवन और कलानुराग संस्कृति और संपत्ति अतीन्द्रिय और अतीन्द्रिय वाल्मीकि और वल्मीक नेता अभिनेता
धर्म और अफिम शिक्षाविद और शिक्षामंत्री बानप्रस्थ और वन्यप्रस्थ एवं सुपर और सक्रेटिस दुईटी प्रबंध को विशेष भाव गुरुत्व देती एवं ताहा होची जे सुपर और सक्रेटिस एवं अस्तित्ववादी मन और जीवन तो ये जो प्रबंध गुड़िकर विशेषत्व होची जे जीवन संपर्कित अन्यान्य पारिपार्श्विक चरित्र और घटनावलीर एक तुलनात्मक अध्ययन तेणु से लेखा गोटे एकमुखीनता नुहे गोटिया माड़ी एवं सब डायलेक्ट या द्वंद्व लेखा एवं से डायलेक्ट जो कला समय गोटे कंपेरेटिव स्टडी कौन यहाँ अतीत कौन था बर्तमान कौन अच्छी भविष्य कौन हम तेणु एवं लक्ष्य हो प्रबंध गुड़िक लक्ष्य हो मनीष तथ्य निरूपण प्रयास चित्तरंजन दास दार्शनिक अवचिंतार मनीष प्रत्येक बुझा खूब कष्टलब्ध व्यापार सहज बुझे अति जटिल दर्शन तत्व को से भाव में सरल भाव बुझे साधारण पाठक बुझे तेणु भाववाद और वास्तववाद संरक्षण में छिड़ा सी जो मनीषर तथ्य के निर्माण युक्तिसंगत वैज्ञानिक दृष्टि पर्यवेक्षित मनीषर अस्तित्व संपर्क में विचार भूमि है जे आधुनिक विज्ञान परिसर गुड़िक मध्य प्रवेश कर से आत्म सचेतन है मनीष आपे आत्मा तथा चतुर्पार्श्व मूल्यांकन करने आरंभ कला आपण भितर नूतन आविष्कार कर एक केन्द्र उपर अवस्थित रही से निजर अस्तित्व एक मूल्यांकन करने प्रस्तुत है भितर और बाहर भितर नाना असंगति रही अनुभव कला से असंगति गुड़िक विरुद्ध विद्रोह कला तो मनीष दृष्टि मनीष सर्वदा गोटे विद्रोही सब से विद्रोह तो चित्तरंजन दृष्टि मनीषर समस्या राजनीतिक नुहे परंतु मानविक से समग्र संबंध भूमिटी मध्य राजनीति रही अर्थनीति रही क्षमता तथा कर्तृत्व गुड़ाक प्रति एक दृष्टिकोण जेकोसी वस्तु किंबा अवधारणा संपर्क में प्रत्यय निरूपण करने अंतराल कार्य करें तार व्यवहार्य प्रक्रिया तथा सामाजिक संस्कृति सहित जड़ित द्वंद्वात्मक संपर्क जहाँ आलोचना कर धर्म सहित मनीषर संस्कृति बेस बहु पुरातन मनीष प्रत्यय निर्माण में धर्मर भूमिका अनस्वीकार धर्म ये गुरुत्वपूर्ण भूमिका नहीं तेरे यही धर्मर स्वरूप किपरि हो मनीष सभ्यता विकास में सहायक हो से नहीं चित्तरंजन दृष्टिकोण बेस स्पष्ट तेणु दृष्टि से कार्लमार्क्स धर्म संपर्कित मतवाद को समर्थन करने सहित तार व्याख्या कर धर्म और अभिमत प्रवर्तन से मार्क्सर धर्म संपर्क जो चिंता अभिवृद्धि पूर्ण भाव समर्थन कर आगे आलोचना भाववाद अपेक्षा विज्ञानभित्तिक अनुचिंता को मनुष्य सभ्यतार विकास पथरे गुरुत्व बोली से विचार तो विज्ञान और धर्मर मूल उत्स को अनुसंधान कर मनीषर धर्म विषय निज मत रखी स्वभाव मूल्य मनीष आप देखिए पुस्तक तार भर चमत्कार व्याख्या कर कहते भितर शस नड़िया भितर शस थाए भितर शस अपेक्षा उपरर खोलपा सढ़ईटा अधिक वर्णन सहकार देखा आरंभ कले बिचरा नड़ियार दशा कौन हम तेणु बिचरा नड़ियार दशा जहाँ हमें बर्तमान अधिकांश मार्ग और धर्मर दशा प्राय से प्रत्येक धर्म भारी बहड़ हो सतत अबा चोपा मान ही अधिक प्रादुर्भाव विस्तार कर
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅଫିମରେ ମଦଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅତି କଠୋର ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ଭାବନାମୟ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ତାହା ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗତିଶୀଳ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ଓ ବାସ୍ତବତା ରହିବା ସହାୟକ। ତେବେ ଏହି ଉଭୟ ଆଦର୍ଶ ଓ ବାସ୍ତବତା ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଆପେକ୍ଷିକ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜୀବନରେ ପରିଚୟ ସହିତ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ନା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ବାସ୍ତବ ଅବବୋଧ କେତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଥବା କେତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରୁ ଆମେ ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାର ଆୟତନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟାମୋଟି ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାନୁମାନ କରିପାରିବା। ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାର ପରିଧି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିର ପରିସରକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଟୁ ବି ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଂ dissatisfied than a pig satisfied. Better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. অর্থাৎ যে অল্পরে সন্তুষ্ট ঘুষুরি হওয়া অপেক্ষা অসন্তোষপূর্ণ সক্রেটিস হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে কহতি যে যে নির্বোধ যে ঘুষুরি করে এই কার্যগুড়াক ভিতরে সন্তুষ্ট হয়ে রয়েছি ଓ କାଦୁଅ ଗୁଡ଼ାକୁ କେତେ ନା କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଅସଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇପାରିବା ବିଷୟରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଖବର ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ସକ୍ରେଟିସ୍ର ଅସନ୍ତୋଷତାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି, ସକ୍ରେଟିସ୍କୁ ଆଦୌ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀର ମଣିଷ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଘୁଷୁରୀମାନେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷର ବରାଦ କରନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିରୂପଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେବେ, ମାତ୍ର ସେହି ବିଫଳତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆହୁରି ଅନେକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକାଠି ଉପସ୍ଥାପନ କର ପ୍ରଫେସର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପୁରାତନ ସ୍ୱସ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଓ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱସ୍ତି ଝଙ୍କାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଜୀବ ପାଣିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କିଏ ରହିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ସେ ତମାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ପାଣି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଏହା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏଇଥିପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷ ପଛକୁ ପଛେଇ ଯିବେ, 100 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର ତୁଳନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୃଥିବୀରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଯୋଗଜନ୍ମା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଏକ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତମ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ସେ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେ ମହନୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ଏ ସମାଜକୁ। ସେହି ବାର୍ତ୍ତା କାଳ କାଳକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ 1923 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 2011 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଗଲପୁର ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଗାଁ ପାଠ ସାରି କଟକର କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପରେ ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲେ ଶାନ୍ତିନିକେତନ। ଶାନ୍ତିନିକେତନରୁ
सी गले डेनमार्क कोपेनहेगेन्स पीपुल्स कॉलेज रे जोटि कि मनोविज्ञान एवं सांस्कृतिक मानव विद्या पढ़िले। सी स्वाधीनता संग्रामी मानक सहित मिसिले, सेमानंकर दुख सुखर भागी हेले, सेमानंक सहित अंशीदार हेले एवं कारावरण कले मध्य। 1954 मसीह से डेनमार्क रु फेरी मालती चौधरी और नवकुष्ठ चौधरी द्वारा प्रतिष्ठित जो जीवन विद्यालय शिक्षक भाव में नियुक्ति पाइले। परवर्ती समय से जीवन विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव में रहिले। तेबे जो विद्यालय अध्यायी मानू स्वाधीन भाव में जीवन जीवार जीवन को बुझीबार कौशल शिखौला, से विद्यालय रे से चाकरी करथिले 4 वर्ष काल। विद्यालय गाँ को फेरी से गले आग्रा विश्वविद्यालय रे 1959 मसीह पाठ पढ़िले ग्रामीण विश्वविद्यालय। 1962 रे वर्षे पाई से पश्चिम जर्मनी जाइए। 1973 से भुवनेश्वर फेरी आसी पूर्णांग शिक्षा केन्द्र शिक्षकता कले एवं परवर्ती समय रे प्रायतः 7-8 वर्ष धरी समग्र ओडिशा रे पूर्णांग शिक्षा केन्द्र प्रचार प्रसारण दायित्व नेले। कौन से संगठन में से अधिक काल रही पारि नाहंती, एइथिपाई रही पारि नाहंती, सी जने निर्भीक व्यक्तित्व। कारण संगठनर प्रमुख व्यक्ति सहित बा संगठनर मालिकों सहित से गोटे बेसालिस मानसिकता रहिला। कारण यांकर गोटे स्वाधीन भाव में जीवन जीवार अभिच्छा थिला एवं से स्वाधीन भाव में जीवन जीवार अभिच्छा पाई से समग्र पृथ्वी से बुलीचंती। से एमिति जने व्यक्तित्व जहाँकर समग्र पृथ्वी होउचे घर, जी सबु मनुष्यंकर भावंती गोटे भाषा, जी कहती समस्तंकर होउचे गोटे धर्म गोटे विचार। से बोधहुए से सबु मनुष्यंकर प्रिय चित्त भाई, तांको एथिपाई चित्त भाई बोली कहते। से सबु मनुष्यंकर प्रिय, से पृथ्वीर जो जो जगह को जाइछन्ति सेठिकार लोकंक सहित से मिशिछन्ति, सेठिकार पानी पवन सहित से जोड़ी होइछन्ति। छलनात्मक भाव में नुहे, अति आंतरिक भाव में आत्मीयतार सहित से लोकंक सहित मिशिछन्ति। तेणु मिशिछन्ति बोली से प्रायतः 17टी भाषा शिक्षा करते। जोठिकी से जाइछन्ति सेठिकार लोकंक से जोड़ी हो जाइछन्ति। तेणु से सब भाषा शिक्षा करने से योग्य हो पारे। से दर्शन शास्त्र कहतु, मनोविज्ञान कहतु, मानव विज्ञान कहतु, समाज विज्ञान, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल सबुथिरे से जड़े पारंगम व्यक्तित्व। से जड़े बाग्मी, से जड़े भ्रमण करने को श्रद्धा करुले, भ्रमणशील व्यक्तित्व, स्पष्ट कथा कहते। से सहृदयतार सहित समस्त को से आलिंगन करें। बहु पुस्तकर स्रष्टा, पृथ्वी में कहुए गोटे नॉन फिक्शनल लेखक भाव में से परिगणित। प्रत्येक ग्रंथ तांकर गुणात्मक। से अरविंदर विभिन्न पुस्तक को से ओडिया अनुवाद कर। केवल अरविंदर पुस्तक अनुवाद कर नुहे, से विभिन्न छोट पिलामानंक पाई विभिन्न गल्प रचना करछन्ति एवं पृथ्वीर विभिन्न भाषा लेखा जाइथिबा पिलामानंकर गल्प को मध्य से अनुवाद करछन्ति ओडिया भाषा। तेणु चित्तरंजन दास थिले जड़े यथार्थरे परिव्राजक, मानसिकतार एवं जीवनचर्या सते जेमिति बुलिबा एवं प्रकृति सहित मनुष्यर गोटे मित बसेबा, प्रकृति सहित मनुष्यर मित बसेबा तांकर होचे गोटे बड़ प्रवृत्ति। से जेते जेते स्थान बुलीचंती देश बा विदेश सबुठी से संपृक्त भूमिर मनुष्य मानकर जीवनचर्या, सेमानंकर सांस्कृतिक, अर्थनैतिक, सामाजिक व्यवस्था संपर्क में तांकर अस्मिता को से बुझेबा प्रयास करिछन्ति। सेही भूमि संपर्कित लेखा गुड़ी को से लिखिछन्ति
पढ़ी सेमानंक सहित मिशीगला पर से गोटे निजर अनुभवर वार्ता जमी प्रत्येक बही से लिखिं फलत सेमानंक विषय जिते से लिखुंट से निज विषय लिखिला भली अनुभव कर सते जमी विदेश विदेश नुहे तांको निज देश तांको मनीष मानकर भाषा मनीष मानकर समस्या संपर्क में कही बोली तांकर भ्रमण कहानी स्पष्ट हो पड़े। सी कहती कौन सी मनीष स्वतंत्र नुहंती कौन सी मनीष स्वतंत्र नुहंती पृथ्वीर सबु मनीष गोटे धाड़ी रे जड़े जड़े जमी छिड़ा ये प्रकार अनुभव आप चिंता कर जड़े व्यक्ति केते विशालित केते हृदय तांकर तेणु भ्रमण कहानी पढ़ला बेले जड़े पाठक अनुभव करिवो जे से अन्य भूमि रे नाही से जमिति निज भूमि रे अछि अन्य काहा को पढ़ु नाही से निज को ही पढ़ुछि। तांकर प्रबंध गुड़िक साधारणतः दुई प्रकार बोली गवेषक माने मत व्यक्त करछन्ति। गोटे होछि रम्य रचना जहाँ व्यक्तिनिष्ठ प्रबंध आ गोटे होछि वस्तुनिष्ठ प्रबंध जहाँ बौद्धिक रचना। कहीं कहीं समालोचक माने कहନ୍ତି जे चित्तदास को कौन भल कथा किसी देखा जाए उत्तर से एति कह जाई पारिबो तांको पई भल आ मंद भल जेतिकी भल मंद ताठार अधिक भल एवं मंद जेतिकी मंद भल मध्य ताठार आहुरी अधिक भल ए विचार रे से निजको तैयारी करछन। जो मनुष्य निजर अनुभव माध्यम रे अन्य मनुष्य को देखे अनुभव करे तापाई परस्पर विपरीत धर्मी विचार गुड़िक अर्थहीन हो पड़। तेणु कौन से सत्य सर्वशेष सत्य नुहे जमी बुद्ध शेष समय कहते कामनार विनाश रे दुखर विनाश ता सर्वशेष कथा नुह से चित्तरंजन दास कहते कौन से सत्य सर्वशेष सत्य नुहे। संक्षेप में कहले कौन से घटना कौन से विचार कौन से विषय बा व्यक्ति विषय देखला बेले से मोहयुक्त ही ना से निजे थांती पुणी न थांती। तेणु यही विचारधारा को नहीं से अनेक पुस्तक रचना कर विभिन्न बही मानक मध्यरु विश्व को गवाक्ष गोटे पुस्तक जहाँ केंद्र साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होता। प्रकृति में विश्व को गवाक्ष होची चित्तरंजन जीवन दर्शन। चित्तरंजन जड़े व्यक्ति तांकर दर्शन केवल से बही रही आम अनुभव कर 66 भागरे संवाद 1987-88 मसीह प्रति सप्ताह प्रकाशित होता गोटे गोटे चैप्टर से 66 चैप्टर अच्छी एवं ओडिशार पाठक मानक पई विश्व को से गवाक्ष जमिति देखि खोली दी जाइछन। से चिंता करबा कथा कि गोटे स्तंभ जो खबर कागज जो स्तंभकार ये स्तंभटा केते ऊर्ध्वगामी हो पारे केते ऊर्ध्वचेतना को परिव्याप्त हो पारे ताहा होचे विश्व को गवाक्ष पुस्तक जो थे धर्म रही संस्कृति रही शिक्षा रही कला रही साहित्य रही दर्शन रही सभ्यता रही जातीयतावाद रही जावतीय प्रचलित कौशल मनीष को गोटे संकीर्ण परिधि भितर मनीष जमी रही से भयभीत करके गोटे बंधन सृष्टि करुँच से बंधन को किमिति भाव में आम उन्मुक्त करिपारिबा एटा होचे तांको पुस्तकर विचार। मनीष नुआ चिंता करने को साहस करि पारे ना जो माने बंधन युक्त से माने नुआ कथा चिंता करने को साहस करती ना तापाई गवाक्ष लोड़ा किंतु गवाक्ष न खोजिले मध्य मिले ना किए कहीं गवाक्ष बा खोजिबो गवाक्ष कहीं जड़े खोजिबो अल्परे तो मनीष सुखरे रोचे किंतु लेखक चित्तरंजन दास सी कहते गवाक्ष खोलने प्रत्येक मनुष्य को प्रवर्ताई प्रोत्साहन देते। गवाक्षर मुख्यतः दुईटा दिग बाहरटा को भीतर को आनी था आपण गभीर भाव में टिके चिंता करंतु जे मनुष्यर गवाक्ष खोलिले बाहरटा भीतर को आसी था एवं भीतरटा विश्वाभिमुखी हुए मनुष्यर भीतरटा मनुष्यर अंतर्चेतना ताहा विश्वाभिमुखी हुए। तेणु बाहर दर्पण रे मनीष भीतर को देखे एवं भीतर दर्पण रे मनीष विश्व को देखे। गवाक्षर संख्या मध्य बहुत तेरे जी जी चाहिए ता जीवन में से गवाक्ष खोल लेखक कहवाक चाहिए
मनुष्यर आंट जेतिकी बढ़ुची अनुराग सेतिकी कमी कमी जाउची। लक्ष्मी बढ़ुची एबे लक्ष्मी छिड़ी छिड़ी जाउची। भय बढ़ुची भयालु माने आहुरी भयंकर हो जाउचंती, उग्र हो उठुचंती, क्षमतायुक्त हो उठुचंती। तार समाधान है गवाक्ष खोलिबा एवं विश्व को गवाक्ष खोलिबा, अनुराग को समुत्थित करवा। तेरे कौ दिग को गवाक्ष उन्मुक्त हो? गवाक्ष मैंने आप बुझीपार गवाक्ष हूँ गोटे झरका द्वार, से द्वारटा उन्मुक्त हवा दरकार। तेणु कौ दिग को गवाक्ष खोलिबा ना मनुष्यर जो प्रचलित शिक्षा व्यवस्था, मनुष्यर धर्म, मनुष्यर संस्कृति, सभ्यता, कला, जातीयतावाद, निसंगता भितर मुक्त चिंता आड़ को उन्मुक्त करवा। निसंगता बोध मध्य मनुष्यर मुक्त चिंता आड़ को उन्मुक्त करवा गवाक्ष। तेणु वर्तमान दुरावस्था पृथ्वीर भविष्य आड़ को उन्मुख करवा हूँ गवाक्ष खोलिबा। अर्थात गात भितर ऊपर को उठिबा, गात भितर ऊपर को उठिबा, जातीयतावाद भितर मनुष्य पणिया आड़ को जीवा, बाहर भीतर को जीवा। से कहते गवाक्ष खोलिले जाति जाए ना, असल जातिटा को चिन्ह हुए। विश्व को गवाक्ष न खोलिले मनुष्यर गत्यंतर नाही। प्लेटों ठारू अरविंद पर्यंत, उपनिषद ठारू दास कैपिटाल पर्यंत केते केते उत्थापन करछंती, केते केते नमूना आनिछंती से पुस्तक भितरे। बहीटी को पढ़ीदेले मनुष्य भितरे जेमिति अनेक प्रश्न अंकुरित हो उठिब। आम चारिपाखरे पुणी एते प्रश्न अच्छे, आमे तो सुखरे बंचुछु, किंतु आम चतुर्पार्श्वे गवाक्ष खोलीदेला परे आम चतुर्पार्श्वे एते प्रश्न रही। सबू प्रश्न उत्तर देइछन्ते लेखक, तथापि आहुरी खोजिबाक पड़िबो। से केवल चिंता करते ना, चिंता करने को मनुष्य को प्रोत्साहन देता, उद्बुद्ध करता। विश्व को गवाक्ष चित्तरंजन दासंकर प्रज्ञा उज्ज्वल एक अकपट जीवन दर्शन। से कहते साहित्य हूँ तीन प्रकार। साहित्य हूँ तीन प्रकार। गोटे हूँ पुलक साहित्य, गोटे हूँ आदर्शवाद साहित्य, आ गोटे हूँ आरोहण साहित्य। आपण मैंने जानी उपनिषद तीन स्तर कथा कहुई। आप विज्ञान में तीन स्तर कथा कहुई। उपनिषद कहुई जे मनुष्य आखि सामने जहाँ देखे, मनुष्य आखि सामने जहाँ देखे ताकू उपनिषद ना हूँ तैजस। मनुष्य आखि बंद कला परे जहाँ अनुभव करे समग्र विश्व तार गोटे कैनभास आकार देखा जाता है, ताकू कहुए उपनिषद वैश्वानर। एवं आखि खोला थिबा एवं आखि बंद थिबा तार जो तृतीय स्तर को मनुष्य जाए, से स्तर हूँ सुसुप्तिर स्वर, ता हूँ गोटे प्रज्ञार बाणी। तेणु मनुष्य जितेबाला ये तीन स्तर देकी आरोहण साहित्य पाखे पहुँचुचे, तीन स्तर अतिक्रम करने को पड़े। से कहते पुलक साहित्य। पुलक साहित्य अर्थ पुलकित होगा, जमीक जड़े कीर्तन गाँचे, शह शह लोक हजार हजार लोक मैंने नाचुचान, ये हूँ पुलक साहित्य। रामायण आलोचना होन्य मैंने उल्लसित होती, रोमांचित होती, सीता दुखरे म्रियमाण है आखिर लोभ हो पुलक साहित्य। कवि सम्राट उपेन्द्र भंजर साहित्य, अभिमन्यु सामंत सिंह साहित्य पुलक साहित्य। तेणु ये प्रायतः रीतिजुगर समस्त साहित्य मान से पुलक साहित्य। आप जिते प्रकार नाटक देखुच, नाटक देखिक आम कांदी पकाऊँ, ये हूँ पुलक साहित्य। परवर्ती कथा कहते आदर्शवाद, बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। आदर्शवाद आदर्शवाद कौन ना मनुष्य जिते बड़े कौन निजर करनी कौन घटना को निजर धर्म को निजर करनेबा, निजर संस्कृति को निजर करनेबा, निजर शिक्षा को निजर करनेबा, निजर अतीत, निजर ऐतिह्य, निज जाति, निज देश ताकू जो आपणार करवा। मन कर जड़े मार्क्सवादी लोक, से मार्क्सवाद को से आपणार कर ये हूँ आदर्शवादी साहित्य। जड़े मनुष्य से गोटे गुरु पाखे समर्पित हो जाता, बाट बंद हो जाए, से अन्य को देखिपार ना। तेणु उच्चतर सोपान रही, निजे उच्चतर सोपान रही, मो संस्कृति महान उच्चतर सोपान अच्छी, आ समस्त संस्कृति हूँ हीन। तेणु ये हूँ आदर्शवादी साहित्य।
कारण मनुष्यर ग्रहणशीलता ये ना अन्य मानक ग्रहण कर मानसिकता से भर ना। परवर्ती साहित्य हूँ जे आरोहण धर्मी साहित्य, जो साहित्य आम आखिरे अनंत तृष्णा दे पारे, हृदय डेणा लगे दे पारे, श्रद्धार धन आमको अधिक अधिक धनी करे दे पारे, आम भितर थिबा रुद्ध द्वार को खुली देवार जे समर्थ हुए, चेतनार उत्तरण घटाई बाहर को एकत्र गोटे सूत्र जे गुंथि दे पारे ताहा होचे आरोहण साहित्य। जे आत्मा को खोजना को हेले तुमको मनन साधन श्रवण एवं निधिध्यासन से साधन रहिले तुम आत्मसंधानी हो पार। जमीक याज्ञवल्क्य आध्यात्मिक दर्शन कथा कहते भारतीय दर्शन गोटे मूलपिंड ताकि पति लगी पति प्रिय नुहे, पति लगी पति प्रिय नुहे, आत्मा लगी प्रिय, केवल आत्मा लगी। पत्नी पाई पत्नी प्रिय नुह, आत्मा लगी। पुत्र लगी पुत्र प्रिय नुह, आत्मा लगी। संसार समस्त वस्तु निज पाई प्रिय नुह, आत्मा लगी प्रिय। तेणु हे मैत्रेयी तुम आत्मा को प्रत्यक्ष करने दरकार। श्रवण मनन एवं निधिध्यासन माध्यम तुम साधना जारी रहा दरकार। ये चेतना भारतीय दर्शन मूल भित्ति आत्म साक्षात्कार ताई हूँ गवाक्ष। जो साहित्य को संप्रसारण करा जाई पारे, जो साहित्य को अतिक्रमण करा जाई पारे, जो साहित्य सृजनात्मक ता हूँ प्रकृत आरोहण साहित्य। तुम जो अध्ययन करते गभीर मत विभजित कला मुख्य अतिथि सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चित्तरंजन दास को विषय तो कौन ऐतिहासिक व्यक्ति नुहे किंतु से जो 1923 मसीह जन्मग्रहण कर 2011 मसीहा अवसान देहावसान होता से 88 वर्ष बयस भितर से बहुत किसी देशपाई कर जातिभेद कौन मतर नी जातिभेद को से बहुत घृणा करते और से हरिजन जो मैंने थे समस्त को से एकाठी कर गोटे स्कूल भी करते से स्कूल निजे शिक्षकता करते अन्य लोक मानक अन्य जन लोक शिक्षकता करने आह्वान करते एवं निजे सी अन्य मानक गोटे उदाहरण बांधते जहाँद्वारा कि से जड़े चित्त भाई बोली समस्त प्रिय थे। से गरीब पिला केमती उन्नति हम स्कूल गोटे खोलिए ये भितर सब पूरा समस्त से आप्राण चेष्टा करते गरीब लोक केमी उन्नति घटो और हरिजन मैंने केमती गांधीजी नीति अनुसार अनुप्रेरणा दौले। तेणु से गांधीजी भली अस्पृश्यता और ये जो जाति भेदभाव ये सब को सी बहुत पछरे पकई निजे से हरिजन बस्ती गला मला बेले शव को से हरिजन मशान घाटे जलैवाई शवदाह करने कही। तेणु ये जो भाव ये से आम आज जयंती दिवस आम कि भी गोटे काणीजाए मात्र दे आम अनुप्राणित हवा ताले जब समाज सब बेले आमठू बहुत 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 लोक जे कि आमर निजर शोल्डर तले अच्छा आम शोल्डरटा एत उच्चा आमठू आम शोल्डर तले भी बहुत लोग अच्छा। तेणु सब आम चेष्टा करवा केमी आम तले जो मैंने अच्छा से केमी ऊपर को आनी आम किसी कर सेटा कारण चेतन दास आमर गोटे निजर गोटे अनुप्राणित इच्छा आम आगे को अनुप्राणित हवा। धन्यवाद। चित्त भाई एपरी एक अमूल्य अपूर्व ग्रंथ जहाँ गोटे पीढ़ी में समूह अध्ययन कर प्रतिभार विभिन्न आंगिक स्वप्न और संभावनार आकलन और विश्लेषण संपूर्ण कर 2006 एप्रिल राउरकेला छाड़ी भुवनेश्वर पहुँचला पर पेंशन न थी मासिक 23,000 दरमार अवसर नापर मु पुनर्बार चाकरी कलिकता गली। प्रति मासरे थरे मात्र चित्त भाई क्लास को जापी जुलाई 2001 फेरला बेलू से देहत्याग कर सारी प्रत्यक्ष स्थूल संपर्क मोर विशेष नाला
2005 ମୁଁ ସୁରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ହେଲେ ବୟସାଧିକ ଯୋଗୁଁ ସେତେବେଳକୁ ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ। ଆବେଗ ରାଜ୍ୟରେ ହୃଦୟ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ମୋର ନିଜର ଏତେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ କରି ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ରବିବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି କାନୁନଗୋଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଭୀର ଋଣୀ। ସେ ମୋତେ 1 ଲକ୍ଷର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାରେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 2013ରୁ 2017 ଯାଏ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ହାତରେ କିଛି ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଡିଟ୍ କରି ଅକ୍ଟୋବର 3 ଦିନ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଲେଖାଟି ମାନ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭାରେ। এই ଯେଉଁ ଲେଖା ପ୍ରଚାର ବିମୁଖ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ଆଜି ବିତରିତ ହୋଇଛି, ତାହା 2017ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଏପରି ବହୁମୁଖୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକିବି ମୁଁ ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ସେ ତ ମଣିଷ ଭାବରେ ସର୍ବନାମ। ପ୍ରତିଭାର ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କର ଦଳିତ ନିବନ୍ଧମାନଙ୍କରୁ ଆଣିତ। ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରଫେସର ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କର ବନଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନିବନ୍ଧ। ଘଟଣାଟି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର 1986 ମସିହାର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ଉତ୍ସବ ବେଳର। ସେଥିରେ 3 ଜଣ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ପ୍ରଫେସର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର, ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଓ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଥମ ବକ୍ତାଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ସଞ୍ଚାଳକ ପ୍ରଫେସର ଦେବକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଲେ, ଜ୍ଞାନର ସବୁ ବିଭାଗରେ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ସହଜ ସଞ୍ଚରଣ। ଏପରି କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି କେଜାଣି କାହିଁକି ପ୍ରଫେସର ସଦାଶିବ ମିଶ୍ର ଇମ୍ପଲ୍ସ ଆବେଗରେ ଠିଆ ହେଇ କହି ପକାଇଲେ, ଯିଏ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି ସେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ, ପ୍ରଫେସର ଦାଶରଥୀ ଦାସ ତାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବିଷୟରେ ପୁଣି ଏତେ କଥା ଅକୁହା ଥିଲା, କେତେ ଗଭୀରକୁ ନେଇଗଲେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା। ମୋ କଥାରେ ସାରାଂଶରେ କହିଲେ, ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଦେବକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଭିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବା ପ୍ରତିବାଦିତ କରିଦେଲେ। ଜାଣତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଗିରିଜାଶଙ୍କର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗିରିଜାଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘରକୁ ଥରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଆବଶ୍ୟକ ବାବୁଙ୍କୁ 2ଟି କଥା କହିବି। ଥରେ ଗିରିଜାବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ 2 ଜଣ ଜର୍ମାନୀରୁ ଆସିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ, ଜଣେ ପୂର୍ବ ଜର୍ମାନୀରୁ ଆଉ ଜଣେ ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଏତେ ପୃଥକ ଯେ କେହି କାହାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ଜଣେ ଚିତ୍ରକର, ସେ ପୁଣି ମାତୃଭାଷା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଯାଇ 2 ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ହୋଇ 2ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ସହଜ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ସମସ୍ତେ ଚୀନ ଯାଇଥିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ବୁଲିବାଲି ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଚୀନରୁ ଫେରି ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବହି ଭାରତରୁ ଚୀନ ଲେଖିଥିଲେ, ତାହା ପଢ଼ି ଜଣେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ନେତା କହିଲେ, ଏହା ଇଂରାଜୀରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲେ, ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଚୀନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଛଡ଼ିବା ପରେ ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର 230ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ କୃତି, ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ପୁସ୍ତକ ବେନେଡିକ୍ଟ ସ୍ପିନୋଜା ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ଆପ୍ରିସିଏସନ୍। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ ଇଂରାଜୀ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ମାତୃଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଶାନ୍ତିନିକେତନରେ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଶେଷରେ ଉପସଂହାରରେ କହିବି, ସେ କେବଳ ଅସମ୍ଭବ ପ୍ରତିଭାବାନ ନୁହନ୍ତି, ସଂସାରରେ ଥାଇ ସଂସାର ବୈରାଗୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ସଂଯମନିଷ୍ଠ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଆଦର୍ଶ, ଗୌରବ, ବିସ୍ମୟ ପୁରୁଷ। ଶେଷରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର ପର୍ବ। 12 ବର୍ଷ ସଭାପତି ଥାଇ ପ୍ରଗତି ଉତ୍କଳ ସଂଘରେ ମୋ ଆତ୍ମାର ଅଂଶଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଗୁରୁ ହୋଇଥିବାରୁ ସୁହୃଦ ମାନେ ଗୁରୁ ଭାଇ, ସୁହୃଦ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆତ୍ମାର ଅଂଶଟିଏ ଅଛି। ଏ 2 ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି।
राजीव और रवीन्द्र केते परिश्रम कर दुईटी सुंदर प्रबंध उपस्थापित कले आमମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଗଭୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା। ମୋର ଅନୁରୋଧ ବିଶ୍ୱନାଥ ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବିବେକ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା। ଗଙ୍ଗାଧର ସୁରେଶ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୀତ ଦୁଇଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ମିଡ଼ିଆ ଆଉ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷରେ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା। ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କୃତି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହି ଉତ୍ସବଟା ପାଳନ କଲେ। ବର୍ଷା ଝଡ଼ ଭିତରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଶେଷ ହେଲା। ଶେଷରେ ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଗଭୀର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ନାଁ ଭାରତ ଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ ଅବସର ନେଇଥିଲି। ଆଉ ସେତିଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଗତି ଉତ୍କଳ ସଂଘରେ ସଭାପତି ଥିଲି। ରାଉରକେଲା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ଜୀବନ ବିତେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ ରାଉରକେଲାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ରାଉରକେଲା ପ୍ରତି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ରାଉରକେଲା ମାଟି ମୋତେ ସବୁକିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଇଛି। ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏତେ ପ୍ରସାରିତ ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶହ ଶହ ପୃଷ୍ଠା ଲେଖି ହେଇଯିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ ଗୌରବର ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରଚାର ଉନ୍ମୁଖ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରାଉରକେଲାରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ସୁହୃଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଡିଭୋଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ସୁହୃଦ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଉତ୍କଳ ସଂଘର 12 ବର୍ଷ କାଳ ସଭାପତି ଥିଲି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସମନ୍ୱୟରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଲା। ଆଉ ଏତେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଭିତରେ ବି ସୀମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇଟା ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने को भूलु नहीं।